students, hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 6, writing an informal letter, and lesson plan 1, informal letter structure. You will be able to identify what is the structure of an informal letter. So informal means in a relaxed and friendly style. Students, you may have seen that whenever we go to a relative's house and they welcome us, so we say that don't be formal and we are your family members, so no need to be formal. So we write informal letters to relatives and friends. Informal letter हम अपने friends को लिखते हैं, अपने relatives को लिखते हैं, telling them about an important event or our feelings. The different parts of an informal letter are heading that consists of greeting with the receiver's name, the main body, the closing and the sender's signature. तो जो फ्रेंड्स को हम लेटर लिखते हैं, हम उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट शेयर कर सकते हैं. सो टुडे वी विल बी लर्निंग हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर डिस्क्राइबिंग एन इम्पोर्टेंट इवेंट. आज हम सीखेंगे कि एक इनफॉर्मल लेटर कैसे लिख सकते हैं और कैसे एक इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो वी विल बी रीडिंग कास्ट लेटर टू हर फ्रेंड एट पेज नंबर 41. So the night the little girl was punished by her father, she wrote a letter to her friend. जिस रात को लिटिल गर्ल के पापा ने उसे पनिशमेंट दी थी, उसने अपनी फ्रेंड को लेटर लिखा था. So here at first you can see that heading 36 Park Avenue, Baker Street, London, 30th October 1912. So this is the heading. It is including the receiver's address and date. Dear Mary, it is salutation, friend's name. Hope you are well. Why have you not written to me for so long? I want to tell you about something that happened last night between me and my father that hurt me a lot. आशा करती हूँ तुम ठीक हो और तुमने मुझे इतने टाइम से लेटर क्यों नहीं लिखा है, और मैं आज तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि रात को मेरे पापा और मेरे बीच में क्या हुआ. सो दिस इज द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ. इट इज इन्फॉर्मिंग द रिसीवर व्हाई द लेटर इज बीइंग रिटन. इसमें ये बताया गया कि लेटर एक्चुअली लिखा क्यों गया है. नाउ वी रीड द सेकेंड पैराग्राफ. Yesterday morning, grandmother suggested that I make a pin cushion for father's birthday next week. सुबह सुबह जो है दादी ने मुझे बताया कि पापा का बर्थडे आने वाला है, मैं उनके लिए पिन कुशन बनाऊं. I have always wanted him to love me and this way was a chance to earn that love from him. मैं हमेशा चाहती थी पापा मुझे प्यार करें और आज ये एक अच्छा तरीका था कि मैं उनका प्यार पा सकूं. I worked very hard to cut and sew the silk together. मैंने बहुत मेहनत की सिल्क को काटने में, सीलने में. When the time came to stuff the pin cushion with something, अब उसमें कुछ फिल करना था कुशन में. I couldn't find anything, मुझे कुछ मिला नहीं. I went to mother's bedroom to look for something for it. मैं मम्मी के रूम में गई कुछ ढूंढने. And found a pile of papers on the bedside, और मुझे कुछ पेपर्स मिले. I was overjoyed to see that I had finally got something to fill it up with. मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे कुछ मिल गया है अब इसमें स्टफ़ करने के लिए. I picked up the papers, मैंने पेपर्स उठाए, tore them, उनको फाड़ दिया into tiny pieces and stuffed my beautiful silk pin cushion, और मैंने उनको उसमें स्टफ़ कर दिया. When my father came home in the evening, जब पापा शाम को घर आए, there was a madness all over. हर जगह पागलपन सा था, शोर शराबा था. All the rooms were ransacked, सभी रूम्स को ढूंढा गया. I was very scared, मैं बहुत डर गई थी. Mother came to my room and asked me if I had seen any papers in the room that morning. तो मम्मी मेरे कमरे में आई और पूछा तुमने कोई पेपर्स देखे हैं. I honestly told her what I did with. तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया मैंने क्या किया है पेपर्स का. Soon after seeing mother's and father's reaction, I realized that honesty wouldn't pay me too well in this case. तो मम्मी और पापा के रिएक्शन देख के मुझे पता चला ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला है. Father was really angry with me for destroying the papers. पापा सच में गुस्सा थे मेरे साथ पेपर डिस्ट्रॉय करने के लिए, because he had written a very important speech on them. क्योंकि पापा की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच लिखी हुई थी उन पे. I tried telling him that it was for his birthday surprise. मैंने बहुत कोशिश की बताने की कि पापा ये आपके बर्थडे सरप्राइज के लिए था. But he was in the mood to listen. वो सुनना ही नहीं चाहते थे. That night he came to my room and whipped me with the ruler. तो उस रात को पापा मेरे रूम में आए, उन्होंने मेरी रूलर से पिटाई की, उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी. He said, you must be taught once and for all not to touch things that do not belong to you. I sobbed for hours. उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बार सबक जरूर मिलना चाहिए ताकि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है तुम उनको टच ना करो, और मैं रोती रही घंटों तक. सो दैट वाज द बॉडी पैराग्राफ. फादर हैज़ नेवर केयर्ड अबाउट माई फीलिंग्स. पापा ने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की. ही डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई आई टोर द पेपर्स. उन्होंने नहीं समझा मैंने पेपर्स क्यों फाड़े. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई गॉड हैज़ मेड फादर्स इफ़ दे ऑल हैव टू बी सो हर्टलेस. तो मुझे समझ नहीं आता भगवान ने पापा बनाए ही क्यों हैं अगर उनको सबको ऐसा ही होना होता है. सो ही हैज़ हर्ट मी डीपली. उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है.
ग्रैंडमदर हैज़ नोन माई फीलिंग्स फॉर फादर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, दादी ने मेरी फीलिंग्स को समझा है. शी सेड आई वुड फॉरगेट अबाउट अ पनिशमेंट बट नो आई विल नेवर फॉरगेट, दादी को लगता है कि मैं इस पनिशमेंट को भूल जाऊंगी लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. इट इज़ अनफेयर टू पनिश विदाउट अंडरस्टैंडिंग वाई अ पर्सन डिड समथिंग, किसी को बिना सोचे समझे पनिश करना बहुत ही गलत बात है. एंड इट इज़ हैज़ एनीथिंग लाइक दिस एवर हैपन्ड विद यू, क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है. डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट लाइक दिस, क्या तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसे रिएक्ट करते हैं. डू यू थिंक फादर वॉज राइट इन पनिशिंग मी, क्या तुम्हें लगता है पापा ने सही किया मुझे पनिश करके. आई वॉन्ट टू नो वट यू थिंक, मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या सोचते हो. राइट बैक सून, जल्दी जवाब देना. दैट वॉज द कास्ट लेटर टू हर फ्रेंड व्हेन शी वॉज पनिश्ड बाय हर फादर, जिस रात को कास्ट के पापा ने उसको पनिश किया था तो बड़ी परेशान थी, उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फ्रेंड को लेटर लिखा था. सो द मेन बॉडी ऑफ द इनफॉर्मल लेटर हैज़ 3 पैराग्राफ्स. आपने देखा इस लेटर में 3 पैराग्राफ्स हैं. द मेन बॉडी ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट द गर्ल इज राइटिंग द लेटर टू शेयर एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन हर लाइफ. सो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में बताया गया है कि जो गर्ल है अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट इवेंट शेयर करने के लिए फ्रेंड को लेटर लिख रही है. इन सेकंड पैराग्राफ द मेन आइडिया इज दैट फादर पनिश्ड हर फॉर टीयरिंग द पेजेस, और सेकंड पैराग्राफ में बताया गया फादर ने पनिश किया है गर्ल को पेपर्स टेयर करने के लिए. शी हैड डन इट फॉर बर्थडे सरप्राइज, लेकिन उसने ऐसा बर्थडे सरप्राइज के लिए किया था. द मेन आइडिया ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज गर्ल्स फील्स दैट द पनिशमेंट गॉट वॉज अनफेयर. थर्ड पैराग्राफ का मेन आइडिया ये कि लड़की को लगता है कि वो जो पनिशमेंट उसे पापा ने दी थी वो ठीक नहीं थी. While writing an informal letter, what details should we include in the first paragraph, in the second paragraph, in the third paragraph? तो जब भी हम कोई informal letter लिखते हैं तो हमें किस तरह की डिटेल्स हर पैराग्राफ में इंक्लूड करनी चाहिए. इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी शुड स्टेट वाई वी आर राइटिंग द लेटर. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताना चाहिए हम लेटर लिख क्यों रहे हैं. इन द सेकंड पैराग्राफ वी शुड डिस्क्राइब द इवेंट दैट वी इंटेंड टू शेयर, हमें उस इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहिए जो हम शेयर करना चाहते हैं. इन द थर्ड पैराग्राफ वी शुड राइट व्हाट थॉट्स एंड फीलिंग्स द इवेंट ब्रॉट आउट इन अस. थर्ड पैराग्राफ में हमें लिखना चाहिए कि उस इवेंट की वजह से हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, एंड व्हाट रिप्लाई वी वांट फ्रॉम द रिसीवर, और जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उससे हम क्या रिप्लाई चाहते हैं. सो व्हाट इन द लेटर शोज दैट इट इज़ रिटन इन पर्सनल एंड फ्रेंडली टोन. तो इस लेटर में ऐसा क्या है जिससे हमें पता चलता है कि ये फ्रेंडली टोन में लिखा गया है, पर्सनल टोन में लिखा गया है. द लिटिल गर्ल्स फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इन द लेटर मेक इट सीम लाइक शी इज़ हैविंग अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड. जो वो अपनी फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रही है कि डू यू थिंक द पनिशमेंट वॉज राइट, हैज़ एनीथिंग एवर हैपेंड विद यू, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो. तो इस तरह के क्वेश्चन से लगता है कि वो अपनी फ्रेंड से जैसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रही है, बात कर रही है. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल. Now let's have a look at your worksheet informal letter structure at page number 29. S1 match the parts of the letter to their correct descriptions. आपको ये parts यहाँ पे given है, आपको match करना है. Second question, underline the words, phrases or sentences that show that the letter has a personal friendly tone. आपको उन phrases, sentences को underline करना है जिससे पता चले कि letter में friendly tone use हुई है. So 233 Rajvilla Jhajjar India. What is this? It is the heading of the letter that informs when and where the letter was written. Dear Rahman, so it is the salutation that points out the person to whom the letter is written. इससे पता चलता है कि letter किसको लिखा गया है. How are you? How is everyone at home? Sorry about not writing to you earlier. I was busy preparing for final exams. My test got over yesterday and today I am sitting with a pen and paper to tell you all about them. So what is this? It will match with A part, informs what the letter is going to be about. हम inform कर रहे हैं कि letter किस बारे में होने वाला है. Now when we got our exam date sheet last month, everyone in school was in panic because we had exams every day without any days off in between. There was too much to study and we weren't getting any days in between for revision. I made a routine, so this is the description of the exams. So it will match with G part, describes the event which the writer wants to share. I think our strategy of revision together in groups worked. I am feeling very relaxed and glad because the tests were over and they went all well. And why are we always so happy when exams are over? How did your exams go? I can't wait to hear from you. Match with E, describes the thoughts and feelings of the writer and the reply expected from the receiver. Best wishes is closing and Gopal is signature. So do your S1. Thank you. Have a nice day.